آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا. خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا. بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے. اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے. زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں. لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے. ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو. ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا. یہ بٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا. لوگ حیران. زیور دیا. اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، کتنی؟ 21,500 روپے کی گاڑی آئی. گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا. لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بیٹی مجھ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے. اس کے شوہر کے بے روزگاری کا غم اور اس کے گھر میں بے برکتی. عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کوئی چوڑی نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، سب زیور بک گیا ہے، سب بنگلے ختم ہو گئے ہیں، سب دولت ختم ہو گئی ہے، سب مال ختم ہو گیا ہے، ہر چیز لٹ گئی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. میں نے سب کچھ دے کے دیکھ لیا اور اب اولاد جوان ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بیٹے کہتے ہیں ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹی کی اولاد جوان ہو گئی ہے کہ ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اب ہمارا حق ہے، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میں اولاد سے چھپ چھپ کے بیٹی کو دیتا ہوں. اب میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے. کوئی ایسا ہے کہ میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے؟ اور میرے دل سے اس وقت نکلی، اے کاش یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں اگر 12 نفل پڑھ لیتا اور زندگی کا معمول بنا لیتا. اس میں بخت بھی ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں مقدر بھی ہے، اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، اس میں رزق میں ترقی بھی ہے، اس میں دولت میں ترقی بھی ہے، اس میں برکتوں اور رحمتوں کے عالیشان محلات اور تاج ہے. 12 اور 12 کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس میں 12 نفل پڑھ لیتا. 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، 2 کر کے 12 نفل پڑھ لیتا. 6 دگانے اور 12 نفل مختصر سے اگر پڑھ لیتا تو آج بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے ایک دولت مند آدمی نے ایک بڑی کام کی بات کہی، آپ سے کہتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں. کہا غریب کی بیٹیاں اکثر بخت والی ہوتی ہیں اور مالدار کی بیٹیاں اکثر رول جاتی ہیں. اور مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے کیوں؟ غریب ساری عمر غربت میں دیکھ کے بیٹ اللہ
बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा। वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है, और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये वक्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं। उसकी नजर असबाब पे होती है, और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालों, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें। उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पिशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा, यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, ये आज की रात फैसलों की रात है। ये आज की रात फैसलों की रात है। ये आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी, शक, वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। किसी ने उन्हें समझाया, दुर्वेश की बात को सुनो, समझो। वो कहते हैं औलाद, तुम कहते हैं औलाद नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों। इसका मतलब है अल्लाह औलाद देगा तो उनके बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे। ये औलाद मिलने की दुआ भी है, औलाद पाने की दुआ भी है। ये नफिल, हाँ मैं हैरान हूं, कुछ चंद सालों से बहुत से और हजरात ने भी नफिल के बारे में बताना शुरू किया। चंद सालों से, 4-5 सालों से शायद मेरे ख्याल में सारी दुनिया का जो है वो तस्बीह खाने की तरतीब पे चल पड़ी। खुशी होती है, खुशी होती है, चल पड़े, अच्छी बात है। क्यों? कि अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से नफा हो जाए, अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से फायदा हो जाए, और अल्लाह की मखलूक का फैज आम हो, तस्बीह खाने का फैज आम हो जाए, खुशी की बात है। कितने आसान नफिल हैं। 2 नफिल पढ़े, सूरत फातिहा के साथ कुल वल्लाह मिला ले, फिर सलाम फेर लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए। 12 रकात नमाज नफिल, खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी, दर्द और गम के साथ पढ़ लिया। और अल्लाह देख रहा है कि इसका जज्बा क्या है, ये रमजान की घड़ियों में मुझसे चाहता क्या है और मांगता क्या है, और ये रमजान की घड़ियों में मेरे साथ इसका मामला क्या है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अपनी और अपनी नस्लों के लिए, अपनी और अपनी नस्लों के लिए हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को थपकी देते थे और बाजों का सर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बच्चे, ए शबाब, ए जवान, ए बच्चे, रब तेरी नस्लों को तवंगरी अता फरमाए। और तवंगरी से मुराद रूहानियत की तवंगरी, रूह की मालदारी, रूह की दुनिया और रूह की मालदारी, और दुनिया की दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे,
اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے۔ یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے، اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے۔ یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں۔ ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا۔ کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کے درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور رزق کا بہترین اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ داستانیں ہیں اس زندگی میں پھیلی ہوئی، بیٹھ جائیں ابھی، داستانیں ابھی زندگی میں پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص آج تک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں گیا، زندگی میں ہر شخص کو کامیابی ملی ہے۔ یقین ہو، درد ہو، دھیان ہو، اور اندر ایک کڑھن ہو، اور اندر دل سوزی ہو کہ اللہ تو کریم ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اولاد کی شادی ہو گئی ہے، کبھی نہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ میری اولاد کی شادی ہو گئی ہے، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے وارث منوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے آگے خزانے کھلوا لیں، اور اگلی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے دروازے کھلوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے اللہ سے کھلوانے خزانوں کے دروازے، آئندہ نسلوں کے لیے جب دروازے کھلوا لیں گے، اللہ کریم ہے، آپ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، رب تو باقی ہے نا، اور رب کے فیصلے باقی ہیں، رب کا نظام باقی ہے، اور اللہ پھر ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے، کھلا کے دکھاتا ہے، وقار، عزت، شان و شوکت دے کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، آپ نہیں گمان کر سکتے۔ آج کی رات میں ایک سجدہ فرمائے، جو سجدہ دیتا ہے رمضان میں، ایک تراویح کا سجدہ ہے، اس پہ اللہ پاک اس کو 70,000 درجے بلند کرتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت میں ایک جنت میں گھر عطا کرتے ہیں، جس گھر کے اندر 70,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر گھر میں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر کمرے ہوتے ہیں 70,000، اس میں کھانے اور نعمتیں۔ لمبی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جنت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں ان راتوں میں ایک سجدے سے۔ اور آپ 12 رکعت نماز نفل میں کتنے سجدے لیں گے؟ 24 سجدے۔ آپ سوچے تو صحیح، ملے گا کیا؟ سوچے تو صحیح، پائیں گے کیا؟ اور عطا کتنا ہوگا؟ اور ملے گا کتنا؟ آپ گمان نہیں کر سکتے۔
इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दे। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी, उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान शौकत होगी, सर बुलंदी होगी और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। होगी, अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15। नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए, 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात है, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है।
और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिस्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिस्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत है, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज, पताशों पे एक अमल भी देता हूं। पताशों में अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्के गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्के गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी। क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता।
ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना, अलिफ का नक्श होगा और इसकी पुष्ट पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा, इसके जो है, इससे पहले अलिफ के नक्श और गैन का नक्श लिखने से पहले यह रोजाना तस्बीह खाने में लिखवाया जाएगा। और यह कुल कितने नक्श हैं? हाँ जी, 15 नक्श हैं। ये कुल कितने नक्श हैं? ये अगर एक दिन में 2 लिखें तो कितने नक्श बनेंगे? हाँ जी बताएं। एक दिन में अगर 2 लिखेंगे तो कितने नक्श बनेंगे? एक दिन में 2 लिखेंगे तो 30 नक्श बनेंगे। हैं? एक दिन में 2 नक्श लिखेंगे तो 30 बनेंगे। हाँ जी, ये 15 नक्श हैं। आज अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके ऐन पीछे गैन का नक्श है। अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके पीछे गैन का नक्श है। अच्छा, नीचे लिखी हुई छोटी सी लाइन है, ये पेन है, ये रूहानी स्याही है, जाफरानी स्याही है। इस पेन से अपनी हाजत लिखनी है, लेकिन हाजत लिखने से पहले एक जिक्र करना है। मैंने आपको एक खास जिक्र करवाना है। मैंने आपको खास जिक्र करवाना है एक, और मेरे साथ इस नक्श को पुर करने से पहले जिक्र होगा। और याद रखना, यह रोजाना होगा। मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा जो दूसरे मुल्कों पे बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं। यह काम ऑनलाइन हो नहीं सकता। जो तस्बीह खाने में है वो मौजूद हैं, और जो तस्बीह खाने में नहीं है उनके लिए मेरी मजबूरी है। और लाहौर वालों के लिए कितनी बड़ी गनीमत और सआदत है कि लाहौर वाले रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे पहले आ जाएं तो तरावियां भी यहीं पढ़ लें, वरना रात 9 बजे आके इस नक्श को पुर करेंगे रोजाना। और रोजाना इस नक्श को पुर करने के बाद बाहर नक्श लिखे हुए खास घड़े पड़े हैं, रोजाना इस नक्श को काटेंगे, इस नक्श को। यानी ये आगे भी पुर करना है, पीछे भी। एक दिन में 2 नक्श पुर करने हैं और अपनी हाजत लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है, अपनी मुसीबत लिखनी है। और ये हरूफ तहज्जी के नक्शे, जरा गौर से सुनना। सारा कुरान हरूफ तहज्जी से मिलके बना है। सारा कुरान किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? हरूफ तहज्जी। और ये हरूफ तहज्जी का नक्श है, हरूफ तहज्जी। आपको याद है मैंने एक बाबा जी की बात बताई थी। वो कहते थे मैं ठग हकीम हूं। बाबा जी बहुत गालियां देते थे, बहुत गालियां। मैं उनकी खिदमत में जाता था, मेरे साथ बहुत शफकत फरमाते थे, बहुत शफकत। एक बार माई आई, कहने लगी मेरी औलाद नहीं है। मुझे कहने लगे वो कागज ला कहीं से। मैं कहीं से कागज ला, कहने लगे अले से लेकर या तक इसको लिख के दे दे। और कहा देख बेटा होगा, ये भी लूंगा, बकरी भी लूंगा, बकरा भी लूंगा, सूट भी लूंगा, ये भी लूंगा, लू भी लूंगा। मैं कह रहे दूंगी 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 दूंगी। और उनके पास लोग ये चीजें लाते थे। आपको इल्म नहीं है, ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, ये समझ ले, अगर अलिफ लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और बा लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और ता लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है। और कुरान की तासीर है, और कुरान का कमाल है, और कुरान की ताकत है, और कुरान की कुव्वत है, और कुरान के जलवे हैं, और कुरान के नक्शे हैं, और कुरान की अजमतें हैं, और कुरान का वकार है। और ये अव्वलीन और आखिरीन 70 औलिया सदियों से आजमूदा नक्श चले आ रहे हैं, जो औलिया कराम खास देते थे मुसीबतों के मारूओं को, गम के मारों को, परेशानियों को मारों को। वो मुसीबतें कर्जों में हैं, वो तकलीफों में हैं, वो बीमारियों में हैं, वो इलाज बीमारियों में हैं, वो इलाज मसाइल में हैं, वो मुश्किलात में हैं, वो नाकामियों में हैं। कोई किसी किस्म की मुसीबतें, कोई किसी किस्म की परेशानियां, कोई किसी किस्म का जवाल अगर है ना, तो मेरी तरफ तवज्जो कर लें। फिर अगर किसी किस्म का जवाल है और आप कहते हैं वो बस हल नहीं होता, तो मेरी दरखास्त है इस नक्श को पुर करें। जहां लकीर है अभी ना करें, मैं लिखवाऊंगा, अभी ना करें। जहां लकीर है
उस पे अपनी हाजत लिखेंगे, जितनी लिखें। और जो लिख नहीं सकते वो उंगली से लकीर फेरते जाएं, उंगली पे ऐसे लिखते जाएं, उंगली पे निशान लगाते जाएं। अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है, अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है, अल्लाह दिलों की दुनिया खूब जानता है, अल्लाह आंखों की फरियादें भी जानता है और दिल की आसें भी जानता है, अल्लाह दिल की मुरादें भी जानता है, बहुत ज्यादा मेरा रब जानता है। आपके पास वो पेन है जिस पेन के अंदर रूहानी स्याही है, जाफरान है, गुलाब का अर्क है, जमजम का पानी है, बारिश का पानी है, और भी बहुत सी चीजें इस स्याही में मौजूद है। और ये पेन, जबरदस्त पेन आपको दिया है। और ये पेन आप कभी ना बाजार से इन चीजों की कीमत तो करवा लीजिएगा। बाज लोग होते हैं उनके मिजाज में दूरबीन लगानी होती है कि पता नहीं कितने कमा रहा होगा पीर, इनका तस्बीह खाने का पीर कितना कमा रहा होगा, कितना कमा रहा होगा। तो दूरबीन लगा के ना इन चीजों का रेट ले लीजिएगा कि जाफरान कितने लाख रुपए किलो है, हजार नहीं, कितने लाख रुपए किलो है असली जाफरान, कितने लाख रुपए किलो है। बहुत कमाल नक्श है, बहुत ताकतवर नक्श है। और मिट्टी के घड़े के ऊपर नक्श लिखे हुए हैं, और आप ये रोजाना 2 नक्श लिख के इसको काट के उस घड़े में डाल के आज से चले जाएंगे। आज आपका पहला नक्श होगा, अपनी हाजत लिखेंगे, रोज 2 नक्श लिखेंगे, 2 से मुराद एक आगे और एक पीछे वाला। इसी कागज में देखें दोनों तरफ नक्श लिखे हुए हैं, और आज का नक्श में अलिफ आएगी तो उसकी पुष्ट पे क्या आएगी, गाइन, ये लिखेंगे। और फिर रोजाना एक पूरी रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। आपको मुबारक हो। और मैं खुद इस पे अमल करूंगा। रूहानी जमात बैठ के रोजाना रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। रोजाना बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी, रोजाना बैठ के। और इन घड़ों के ऊपर खास नक्श पहले से लिखे हुए हैं, और खास चीजें पहले से लिखी हुई है, बहुत ज्यादा ताकतवर। और मैं इंशाल्लाह खुद इस पे अमल करूंगा। और फिर क्या होगा, रोजाना आप इस पे नक्श डालेंगे तो इसमें कुल रोजाना कितने 15 नक्श बन जाएंगे ना, 15 नक्श बन जाएंगे। आप रोजाना डालेंगे, 27, ये 26 को खत्म हो जाएंगे। 27 की रात को ये घड़े सामने रख के उनकी मुरादें, उनकी आसें, उनकी उम्मीदें लेकर दुआ मांगी जाएगी। मैं क्या करूंगा, पता है क्या करूंगा, इन तावीजों को हाथों में लूंगा और फिर दुआ करूंगा। फिर तावीज हाथे में लूंगा, अल्लाह जिन्होंने मुरादें लिखी हैं, और आप आमीन कहेंगे। और मुझे अपनी दुआएं नहीं, आपकी आमीन पे बड़ा भरोसा है। और 27 को तो दुआ होगी बड़ी, सजदे में दुआ होगी, रो के सजदों में दुआ होगी 27 को। तो ये नक्श बहुत कमाल नक्श है, बहुत जबरदस्त नक्श है, और इसकी तासीर आप गुमान नहीं कर सकते। आए बैठकर इस नक्श के लिए एक इस्म पढ़ लें। वो इस्म है या जलीलो या जमीलो। क्या लफ्ज है, या जलीलो। पढ़े दिल की गहराइयों से इस नक्श का, और तमाम हरूफ का तासीर, तमाम हरूफ की ताकत और तमाम हरूफ की कुव्वत और अल्लाह के नाम की इज्जत और अजमत और वकार आज इस नक्श की इब्तिदा करते हैं। और एक चीज फिर सोच लें, यह हरूफ तहज्जी का नक्श है। सारा कुरान इन हरूफ से मिलके बना है। मेरे कमली वाले का फरमान इन हरूफ से मिलके बना है। अस्माए हुस्ना इन हरूफ से मिलके बने हैं। मसनून दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी हैं। कुरानी दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी है। मुस्तजाब दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी है। अल्लाहुम्मा जिन दुआओं से पहले आता है इन हरूफ से मिलके बनी है। रब्बना जिन दुआओं से पहले आता है इन हरूफ से मिलके बनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन हरूफ से अल्लाह से मांगा।
कमरी वाले ने इन हरूफ से मांगा, फारूक आजम सिद्दीक अकबर ने इन हरूफ से मांगा, उस्मान गनी हैदर करार हसनैन करीमैन ने इन हरूफ से मांगा। करबला की दुआएं इन हरूफ से मिलकर बनी हैं, मुस्तजाब दुआएं इन हरूफ से मिलकर बनी हैं, इन हरूफ से मिलकर बनी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन हरूफ से मिलकर बनी है। आए हम अल्लाह को कहते हैं मौला, अल्लाह को कहते हैं मौला, ये हरूफ वही हैं, इनकी तासीर, इनकी ताकत, इनकी कुव्वत अपने गैब के खजाने से अता फरमा। हम तेरा नाम पढ़ेंगे और फिर इन हरूफ को के अंदर लाइन में अपनी हाजतें, अपनी मुरादें, अपनी फरियादें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें पुर करेंगे। पढ़ें या जलीलो या जमीलो, डूब के पढ़ें, या जलीलो या जमीलो, डूब के पढ़ें, या जलीलो या जलीलो या जलीलो या जलील। दिल की गहराइयों से पढ़ें, या जलीलो या जमीलो, 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 या जलीलो या जमीलो। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। इस नक्श पे फूंक मार दें। आज एक छल्ला दिया जाएगा जिसका सबूत भी मैं पेश करूंगा। खुद इमामुल औलिया शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह के वलियों के भी, इमामों के भी इमाम हैं शाह वलीउल्लाह, उनके साथ सबूत पेश करूंगा। बाज़ौक़ात इंसान को इल्म की नावाकफियत की वजह से, इल्म की कमी की वजह से इंसान बदगुमानी और शक में मुब्तला हो जाता है, इल्म की कमी की वजह से, नावाकफियत की वजह से। आप नहीं सोच सकते कि इंसान जब ढल जाता है और औलाद जवान हो जाती है, अपने गम भूल जाता है। उसे औलाद के नसीब के लिए, औलाद के मुकद्दर के लिए, औलाद के बख्त के लिए, औलाद की इज्जत के लिए, औलाद के वकार के लिए जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए। फिर वो अपने आप को भूल जाता है। उसकी जान है या नहीं है, उसका लुकमा है या नहीं है, उसकी जिंदगी है या नहीं है, अब उसे औलाद के लिए कुछ चाहिए। जिंदगी में सब कुछ दे सकते हैं आप अपने आप को, सब कुछ दे जाते हैं। लोग कोठियां देते हैं, लोग बंगले देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, माल दौलत देते हैं, औलाद को देते हैं। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो देना कोई जुर्म तो नहीं है। डिग्रियां देते हैं, सब कुछ देते हैं, नौकर भी देते हैं, गुलाम भी देते हैं, गाय भी देते हैं, भैंस भी देते हैं, जहेज में औलाद को ऊंट भी देते हैं। मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसने औलाद को बख्त और नसीब और मुकद्दर भी साथ दिया हो। एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी को दुपट्टा भर के जेवर दिया। ये बट्टे को यूं किया और उसमें जेवर डालता गया, ऐसे उठा के डालता गया। लोग हैरान। जेवर दिया। उस दौर में गाड़ी दी, जब गाड़ी 21,500 रुपए की आई, इतनी
21,500 रुपए की गाड़ी आई, गाड़ी दी, बंगला दिया, माल दिया, नेमतें दी, ना मालूम क्या कुछ दिया। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां खत्म हो गई हैं, अपनी आंखों से देखा हूं कि बेटी मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसके शौहर के बेरोजगारी का गम और उसके घर में बेबरकती। आलम यह है कि मेरी बेटी के हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, सब जेवर बिक गया है, सब बंगले खत्म हो गए हैं, सब दौलत खत्म हो गई है, सब माल खत्म हो गया है, हर चीज लुट गई है। मुझसे कहने लगे कि आपके पास कोई ऐसी दुआ है जो मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। मैंने सब कुछ दे के देख लिया और अब औलाद जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे कहते हैं अब्बा बहन को कब तक भरेगा। इसकी औलाद जवान हो गई है, बेटी की औलाद जवान हो गई है कि अब्बा बहन को कब तक भरेगा। अब हमारा हक है, अब हमारी औलाद जवान हो गई है और मैं औलाद से छुप छुप के बेटी को देता हूं। अब मेरे पास भी खत्म हो गया है। कोई ऐसा है कि मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। और मेरे दिल से उस वक्त आह निकली, ऐ काश ये 11 और 12 की दरमियानी रात में अगर 12 नफिल पढ़ लेता और जिंदगी का मामूल बना लेता। इसमें बख्त भी है, इसमें नसीब भी है, इसमें मुकद्दर भी है, इसमें कर्जों से निजात भी है, इसमें रिस्क में तरक्की भी है, इसमें दौलत में तरक्की भी है, इसमें बरकतों और रहमतों के आलीशान महलात और ताज है। 12 और 12 की दरमियानी रात जो आज रात है, इसमें 12 नफिल पढ़ लेता। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह, 2-2 करके 12 नफिल पढ़ लेता। 6 दुगाने और 12 नफिल मुख्तसर से अगर पढ़ लेता तो आज बेटी के साथ नहीं होता। मुझे एक दौलतमंद आदमी ने एक बड़ी काम की बात कही, आपसे कहता भी हूं और पूछता भी हूं। कहा गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों। गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेट अल्लाह बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा। वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं। उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालों, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें। उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा। ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे। ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज। याद रखिएगा, यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, यह आज की रात फैसलों की रात है। यह आज की रात फैसलों की रात है। यह आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी शक वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे।
ان میں سے ایسے بھی تھے کہ ان کے کہتے تھے حضرت ہمیں ہماری اولاد نہیں ہے، وہ کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں. کہتے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے. کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں. کسی نے انہیں سمجھایا درویش کی بات کو سنو سمجھو. وہ کہتے ہیں اولاد، تم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ اولاد دے گا تو ان کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں گے. یہ اولاد ملنے کی دعا بھی ہے، اولاد پانے کی دعا بھی ہے. یہ نفل، ہاں میں حیران ہوں، کچھ چند سالوں سے بہت سے اور حضرات نے بھی ان نفل کے بارے میں بتانا شروع کیا. چند سالوں سے، 4-5 سالوں سے شاید میرے خیال میں ساری دنیا کا جو ہے وہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چل پڑی. خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چل پڑے، اچھی بات ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے نفع ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کا فیض عام ہو، تسبیح خانے کا فیض عام ہو جائے، خوشی کی بات ہے. کتنے آسان نفل ہیں. 2 نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ہو اللہ ملا لیں، پھر سلام پھیر لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے. 12 رکعت نماز نفل خشوع، دھیان، توجہ، لجاہ قلبی، درد اور غم کے ساتھ پڑھ لیا. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے. یہ رمضان کی گھڑیوں میں مجھ سے چاہتا کیا ہے اور مانگتا کیا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیوں میں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچوں کو تھپکی دیتے تھے اور بعضوں کا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے بچے، اے شباب، اے جوان، اے بچے، رب تیری نسلوں کو تونگری عطا فرمائے. اور تونگری سے مراد روحانیت کی تونگری، روح کی مالداری، روح کی دنیا اور روح کی مالداری، اور دنیا کی دنیا اور دنیا کی مالداری. دعا فرماتے تھے، بچوں کو بھی دعا فرماتے تھے. اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے، جاگ اٹھتے تھے. یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں. آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں. ہفتہ کے بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان، اور رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا. کوئی پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو. یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے، اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے. آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے. یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں. ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے. اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، یہ عطا کیا. ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا. کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کے درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور
रिज़्क़ का बेहतरीन अल्लाह ने वसीला बना दिया। दास्तानें हैं इस जिंदगी में फैली हुई, बैठ जाएं अभी, दास्तानें अभी जिंदगी में फैली हुई। कोई शख्स आज तक मायूस नहीं हुआ, मायूस नहीं गया। जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिलसोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस बनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजाने, उसके दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाए, खत्म हो जाए, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं, एक रिवायत। दूसरी रिवायत में एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या? और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा, और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा, मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दे। मैंने कहा, बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा, और पिशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा,
आंखें ठंडी ना होई। कुर्रत आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं। माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान शौकत होगी, सर बुलंदी होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। होगी, अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15। नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है, और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए। 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात हैं, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिश्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिश्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत है, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है, और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज पताशों पे, एक अमल भी देता हूं पताशों में। अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी। अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें, अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं, अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा।
हाँ, ये मुरादें भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का, सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्के गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्के गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी। क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना, अलिफ का नक्श होगा, और इसकी पुश्त पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा, इसके जो है, इससे पहले अलिफ के नक्श और गैन का नक्श लिखने से पहले यह रोजाना तस्बीह खाने में लिखवाया जाएगा। और यह कुल कंदर कितने नक्श हैं? हाँ जी, 15 नक्श हैं। ये कुल कितने नक्श हैं? ये अगर एक दिन में 2 लिखे तो कितने नक्श बनेंगे? हाँ जी बताएं। एक दिन में अगर 2 लिखेंगे तो कितने नक्श बनेंगे? एक दिन में 2 लिखेंगे तो 30 नक्श बनेंगे। हैं? एक दिन में 2 नक्श लिखेंगे तो 30 बनेंगे। हाँ जी, ये 15 नक्श हैं। आज अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके ऐन पीछे गैन का नक्श है। अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके पीछे गैन का नक्श है। अच्छा, नीचे लिखी हुई छोटी सी लाइन है, ये पेन है, ये रूहानी स्याही है, जाफरानी स्याही है। इस पेन से अपनी हाजत लिखनी है, लेकिन हाजत लिखने से पहले एक जिक्र करना है। मैंने आपको एक खास जिक्र करवाना है। मैंने आपको खास जिक्र करवाना है एक, और मेरे साथ इस नक्श को पुर करने से पहले जिक्र होगा। और याद रखना, यह रोजाना होगा। मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा जो दूसरे मुल्कों पे बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं। यह काम ऑनलाइन हो नहीं सकता। जो तस्बीह खाने में है वो मौजूद हैं, और जो तस्बीह खाने में नहीं है उनके लिए मेरी मजबूरी है। और लाहौर वालों के लिए कितनी बड़ी गनीमत और सआदत है कि लाहौर वाले रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे
پہلے آ جائیں تو تراویاں بھی یہیں پڑھ لیں، ورنہ رات 9 بجے آ کے اس نقش کو پر کریں گے روزانہ، اور روزانہ اس نقش کو پر کرنے کے بعد باہر نقش لکھے ہوئے خاص گھڑے پڑے ہیں، روزانہ اس نقش کو کاٹیں گے، اس نقش کو، یعنی یہ آگے بھی پر کرنا ہے پیچھے بھی، ایک دن میں 2 نقش پر کرنے ہیں، اور اپنی حاجت لکھنی ہے، اپنی پریشانی لکھنی ہے، اپنی مصیبت لکھنی ہے۔ اور یہ حروف تہجی کے نقشے ذرا غور سے سننا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ سارا قرآن کس سے مل کے بنا ہے؟ کس سے مل کے بنا ہے؟ حروف تہجی۔ اور یہ حروف تہجی کا نقش ہے، حروف تہجی۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک بابا جی کی بات بتائی تھی، وہ کہتے تھے میں ٹھگ حکیم ہوں۔ بابا جی بہت گالیاں دیتے تھے، بہت گالیاں۔ میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے، بہت شفقت۔ ایک دفعہ مائی آئی، کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے، مجھے کہنے لگے وہ کاغذ لا کہیں سے، میں کہیں سے کاغذ لا، کہنے لگے الف سے لے کر یا تک اس کو لکھ کے دے دے، اور کہا دیکھ بیٹا ہوگا یہ بھی لوں گا، بکری بھی لوں گا، بکرا بھی لوں گا، سوٹ بھی لوں گا، یہ بھی لوں گا، لو بھی لوں گا۔ میں کہہ رہے دوں گی دوں گی دوں گی دوں گی، اور ان کے پاس لوگ یہ چیزیں لاتے تھے۔ آپ کو علم نہیں ہے، یہ جو حروف تہجی کے نقش ہیں یہ سمجھ لیں، اگر الف لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے، اور با لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے، اور تا لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے، اور قرآن کی تاثیر ہے، اور قرآن کا کمال ہے، اور قرآن کی طاقت ہے، اور قرآن کی قوت ہے، اور قرآن کے جلوے ہیں، اور قرآن کے نقشے ہیں، اور قرآن کی عظمتیں ہیں، اور قرآن کا وقار ہے۔ اور یہ اولین اور آخرین 70 اولیاء صدیوں سے آزمودہ نقش چلے آ رہے ہیں، جو اولیاء کرام خاص دیتے تھے مصیبتوں کے ماروں کو، غم کے ماروں کو، پریشانیوں کے ماروں کو۔ وہ مصیبتیں قرضوں میں ہیں، وہ تکلیفوں میں ہیں، وہ بیماریوں میں ہیں، وہ علاج بیماریوں میں ہیں، وہ علاج مسائل میں ہیں، وہ مشکلات میں ہیں، وہ ناکامیوں میں ہیں۔ کوئی کسی قسم کی مصیبتیں، کوئی کسی قسم کی پریشانیاں، کوئی کسی قسم کا زوال اگر ہے نا، تو میری طرف توجہ کر لیں۔ پھر اگر کسی قسم کا زوال ہے اور آپ کہتے ہیں وہ بس حل نہیں ہوتا، تو میری درخواست ہے اس نقش کو پر کریں۔ جہاں لکیر ہے ابھی نہ کریں، میں لکھواؤں گا، ابھی نہ کریں۔ جہاں لکیر ہے اس پہ اپنی حاجت لکھیں گے، جتنی لکھیں، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی سے لکیر پھیرتے جائیں، انگلی پہ ایسے لکھتے جائیں، انگلی پہ نشان لگاتے جائیں۔ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کی دنیا خوب جانتا ہے، اللہ آنکھوں کی فریادیں بھی جانتا ہے، اور دل کی آسیں بھی جانتا ہے، اللہ دل کی مرادیں بھی جانتا ہے، بہت زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ آپ کے پاس وہ پین ہے جس پین کے اندر روحانی سیاہی ہے، زعفران ہے، گلاب کا عرق ہے، زمزم کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے۔